Good morning, students. Today we will start poem number 12, Ajmal and the Tigers, Arun Kolatkar. Okay. First of all, we will read about the poet. About the poet Arun Kolatkar, 1932, birth 2004, death. He is a contemporary Indian poet. Contemporary it means Samkalin. And he was educated in Pune and earned a diploma in painting. Okay, from JJ School of Arts, Mumbai. And it means he has taken the diploma in painting. Okay, and he writes both in English and Marathi. Both languages are used by him or authorized by him, English and Marathi, both are. And has authored 2 books. Okay, he has written 2 books. The present poem is an excerpt. Excerpt it means taken. It has been taken from Zezuri. Okay, a long poem in 31 sections. A German translation of Zezuri by Given Vanden was published in 1984. Clear? Next, we will start the poem now. Ajmal and the Tigers. The tiger people went to their king and said, "We were starving. We have had nothing to eat, not a bite, for 15 days and 16 nights. Ajmal has got a new sheepdog. He cramps our style and won't let us get within a mile of meat." Ab, that's shocking, said the Tiger King. "Why didn't you come to see me before? Make preparations for a banquet. I am gonna teach that sheepdog a lesson he will never forget." Here, said the tigers. "Careful," said the queen. But he was already gone, alone, into the darkness before the dawn. In an hour, he was back, the good king, a black patch on his eye, his tail in a sling, and said, "I have got it all planned. Now that I know the lie of the land, all of us will have to try. We will outnumber the son of witch. And this time there will be no hitch, because this time I shall be leading the attack. Quick as lightning the sheepdog was, he took them all in the prisoners of war, the 50 tigers and the Tiger King, before they could get their paws on a single sheep. They never had a chance. The dog was in 51 places all at once. He strung them all out in a daisy chain and flung them in front of his boss in one big heap. "Nice dog you got there, Ajmal," said the Tiger King, looking a little ill and spitting out a tooth. "But there's been a bit of misunderstanding. We could have wiped out your herd in one clean sweep, but we were not trying to creep up on your sheep. We feel that means are more important than ants. We were coming to see you as friends." The sheepdog was the type who had never told a lie in his life. He was built along simpler lines, and he was simply disgusted. He kept on making frantic signs
And he kept on making frantic signs, but Ajmal, the good shepherd, Ajmal cut them loose and asked them all to stay for dinner. It was an offer to tigers couldn't refuse, and after the lamb chops and the roast. When Ajmal proposed, they signed a long-term friendship treaty. All the tigers roared, "We couldn't agree with you more," and swore they would be good friends all their lives as they put down the forks and the knives. Ajmal signed a pact with the tiger people and sent them back laden with gift of sheep, leather jacket and walls of wool. Ajmal wasn't a fool. Like all good shepherds, he knew that even tigers have got to eat sometime. A good shepherd sees to it they do. He is free to play a flute all day, as well fed tigers and fat sheep drink from the same pond with a full stomach for a common bond. Now, I want to explain from first stanza and we will read about it. Now, the tiger people went to their king. Here is the story of tiger people and their king. Okay, and said, "We were starving. We have had nothing to eat." Now, tiger people said to his king that we are starving. Okay, and we had nothing to eat. Not a bite. It means they haven't anything to eat, and not a single bite they have, and they cannot fulfill their needs of hunger. So that is why they told to his king, to their king, for 15 days, about 15 days, they hadn't eaten anything. Okay, and 16 nights. Ajmal has got a new sheepdog. Now, here is about the tiger king. It means Ajmal. Ajmal has got a new sheepdog. He has got a new sheepdog, and he cramps our style and will not let us get within a mile of meat. He cramps our style. It means he follow our styles and will not let us get within a mile of meat. And he cannot take, it means he will not take a meat within a mile of meat. It means he cannot take meat within a mile. Okay, यानी कि टाइगर पीपल जो है सबसे पहले किंग के पास गए और उन्होंने कहा कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं, नथिंग टू ईट, हमारे पास एक वाइट भी खाने के लिए नहीं है. 15 days or 16 nights Ajmal has got a new sheepdog. तो 15 days और 16 nights से उन्होंने कुछ नहीं खाया है. Ajmal has a new sheepdog. उसके पास एक नया sheepdog था, and he cramps our styles and will not let us get within a mile of meat. यानी वो हमारी ही स्टाइल को फॉलो करता है और वो कई मील तक उसको कोई भी मीट का पीस नहीं मिल सका. इट मीन्स बहुत दिनों से उसको भी मीट का पीस नहीं मिला है. That's shocking, said the tiger king. अब उसने बोला टाइगर किंग ने कि that is very shocking. ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है. टाइगर किंग ने ऐसे बोला, मतलब बहुत ही दुखी कर देने वाली बात है. Why didn't you come to see me before? And he is saying, then before you should come to me and ask and say about it. तो पहले से आप मेरे पास क्यों नहीं आए ये बात कहने के लिए? Make preparation for a banquet. तो अभी उसने कहा कि बैंकेट यानी दावत की, फीस्ट की प्रिपरेशन करो, दावत की प्रिपरेशन करो. I am gonna teach that sheepdog a lesson he will never forget. अब I am gonna it means मैं जा रहा हूँ. ओके, teach that sheepdog, उस sheepdog को मैं एक लेसन बता रहा हूँ, मतलब सिखाऊंगा. He will never forget, जो कि वो कभी भी भूलेगा नहीं. ठीक है. Here said the tigers. It means देखिए यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि he cramps our style and will not
कि अजमल के पास एक शीप डॉग है और उसकी ऐसी स्टाइल है कि हम उसके मीलों दूरी तक एक मीट का पीस भी नहीं पा सकते। ठीक है, अब वो कहता है कि ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मेक प्रिपरेशन फॉर अ वेंकट, उसने कहा कि इनकी दावत के लिए यानी इनके भोजन के लिए प्रिपरेशन करिए, फीस्ट के लिए। एंड आई एम गोना टीच दैट शीप डॉग अ लेसन ही विल नेवर फॉरगेट, ऐसा लेसन दूंगा मैं शीप डॉग को कि वो जिंदगी में नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। हियर सेड द टाइगर्स, टाइगर्स ने कहा सुनो सुनो, केयरफुल, सावधान रहना। सेड द क्वीन, क्वीन ने कहा। बट ही वॉज ऑलरेडी गॉन, लेकिन किंग जो था वो पहले से ही जा चुका था। क्लियर, अलोन, यानी नाउ द किंग हैज गॉन देयर अलोन and he wants to give a lesson to the sheepdog, okay, that this lesson never be forgotten by the dog, okay, and into the darkness before the dawn, अब वो अकेला ही जा चुका था, यानी into the darkness, अंधेरे में, before the dawn, morning होने से पहले, in an hour he was back, the good king, इन एन आवर, एक घंटे में, ही वॉज बैक, वह वापस आता, द गुड किंग, अच्छा राजा, गुड किंग, बिकॉज ऑफ ही हैज प्रिपेयर्ड फूड फॉर द टाइगर्स ऑल्सो। अब अ ब्लैक पैच ऑन हिज आई, अब क्या हुआ, उसके आईज पर एक ब्लैक पैच यानी निशान पड़ गया। हिज टैल्स इन ए स्लिंग, और उसके पूंछ में भी एक स्लिंग पड़ गया, स्लिंग मैंने मुड़ गई। And said, I have got it all planned, now that I know the lie of the land. And said, और उसने कहा, I have got it all planned now, अब हमने सारा प्लान बना लिया है, that I know the lie of the land, और मैं अब उस लैंड पर जाऊंगा, and all of us will have to try, और हम सब मिलकर ट्राई करेंगे। ठीक है, we all outnumber the son of a bitch, we all outnumber the son of a bitch, यानी एक बिच के सारे डॉगी, मतलब we will all outnumber, it means बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत सारे मतलब son it means dogs मिलकर अटैक करेंगे उस पर। and this time there will be no hitch, और उस समय कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Then because this time I shall be leading the attack, और उस टाइम मैं क्या करूंगा, मैं लीड करूंगा उस अटैक को, यानी मैं लीडर होऊंगा। Then quick as lightning the sheep dog was, यानी कि क्विक था, बहुत ही फुर्तीला था, एक्टिव था, कौन, लाइटनिंग की तरह, वो डॉग्स, और वो डॉग में जो हेड था उनका। The sheepdog was, he took them all in as prisoners of war, यानी उनको सबको कैसे बना लिया उसने, प्रिजनर की तरह, प्रिजनर यानी कैदी बना, वॉर में प्रिजनर बना दिया। The 50 tigers and the tiger king, कौन कौन था इसमें, 50 tigers और tiger king, before they could get their paws on a single sheep, यानी कि वो इससे पहले कि वो एक भी अपना पंजा रख पाते, फौज लगा पाते, ऑन ए सिंगल सीट, एक भी वो नहीं लगा पाए, यानी पकड़ नहीं पाए किसको, उस सीप को। ठीक है, दे नेवर हैड ए चांस, उन्हें जरा भी मौका नहीं मिला। द डॉग वॉज इन 51 प्लेसेस ऑल एट वंस, यानी कि डॉग इतना एक्टिव था कि 51 प्लेसेस को उसने ऑक्युपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया, और इस तरह से उन 51 को भी उसने हरा दिया। He stunned them all out in a daisy chain, यानी उन सबको उसने एक चैन के जैसे, डेजी चैन में बेहोश कर दिया, और एक पूरी सी श्रृंखला बन गई, एक चैन बन गई उन सबकी। And flung them in front of his boss in one big heap, और उसने flung them मतलब उनको खींच कर ले आया, पटक दिया लाके
कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस, अपने बॉस के सामने, इन वन बिग हीप, एक बड़े ढेर में, ठीक है। अब उनको सबको खींचकर कहा 51 को लाकर सामने डाल दिया अपने बॉस के सामने। किसने डाल दिया? उस सीप डॉग ने। नाइस डॉग यू देयर अजमल। अब अजमल ने क्या बोला? बहुत अच्छे डॉग हो तुम। यू गॉट देयर सैड द टाइगर किंग। किसने कहा? टाइगर किंग ने। लुकिंग अ लिटिल इल एंड स्पिटिंग आउट अ टूथ। थोड़ा बीमार लग रहा था और उसका एक टूथ भी टूट गया था। बट देयर्स बीन अ बिट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसमें कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या? वी कुड हैव वाइप्ड आउट योर हर्ड इन वन क्लीन स्वीप। वी कुड हैव वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट मतलब हटाना, निकालना, योर हर्ड तुम्हारे झुंड में से, इन वन क्लीन स्वीप। यानी वन क्लीन स्वीप इट मीन्स एक क्लीन, साफ सुथरे को। बट वी वर नॉट ट्राइंग टू क्रीप अप ऑन योर सीट। यानी उनमें से हम एक को भी नहीं निकाल पाए। वी फील दैट मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स। यानी हमने ये फील किया कि इसका मतलब ये है कि आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स। फील्स जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसके कंपैरिजन में? एंड्स के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं, उसकी जगह फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उन्हें जीवित रहने देना और उनसे जैसे एटलीस्ट उनसे कुछ बातचीत करना, तो वह इन बार बिलीव करता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। किसी का एंड किसी चीज का भी सोल्यूशन नहीं होता। We were coming to see you as friends. उसने कहा कि हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं एक फ्रेंड की तरह। एंड दैट्स द ट्रुथ। और ये सच है। कौन कह रहा है? ये टाइगर के। नाउ द सीप डॉग वॉज द टाइप। द सीप डॉग वॉज द टाइप हु हैड नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ। यानी शीप डॉग जो था एक तरीके का बहुत अच्छे तरीके का व्यक्ति था, मतलब अच्छे तरीके का था। हैड नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ। उसने कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। ही वॉज बिल्ड अलॉन्ग सिंपलर लाइन्स एंड ही वॉज सिंपली डिसगस्टेड। उसने सिर्फ एंड ही वॉज बिल्ड, उसने बनाया अलॉन्ग सिंपलर लाइन, एक सिंपल सी लाइन। एंड ही वॉज सिंपली डिसगस्टेड, और वह उनसे सिंपली डिसगस्टेड, दैट मीन्स उनसे हिट करता था। ही केप्ट ऑन मेकिंग फ्रेंटिंग साइंस एंड बट अजमल द गुड शेफर्ड रिफ्यूज्ड टू मीट हिज आईज। ही केप्ट ऑन मेकिंग फ्रेंटिंग साइंस, और उन्होंने क्या किया? एक तरीके का साइन कराने के लिए पेपर तैयार करवाया, ठीक है, फ्रेंटिंग साइंस। बट अजमल द गुड शेफर्ड, लेकिन अजमल कैसा था? एक अच्छा शेफर्ड था। एंड दैट इज बाय रिफ्यूज टू मीट हिज आईज, इसलिए उसने मना कर दिया। मतलब आंखें मिलाने से इट मीन्स उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। हिज आईज एंड प्रिटेंडेड टू बिलीव एवरी सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट द टाइगर किंग सेड। और हिज आईज एंड प्रिटेंडेड, और वो इस बात का प्रिटेंड कर रहा था, बहाना कर रहा था, टू बिलीव, इस बात पर बिलीव करने का, एवरी सिंगल वर्ड, हर सिंगल वर्ड का, ऑफ व्हाट द टाइगर किंग सेड, जो कुछ भी टाइगर किंग ने कहा था। एंड सीम्ड टू बी टेकन इन बाय ऑल द लाइज, और ऐसा लग रहा था कि जितने भी वो झूठ बोल रहा है उसको सबको उसने अपने अंदर देख लिया। इट मीन्स उसने समझ लिया है। नाउ अजमल कट देम लूज एंड आस्क्ड देम ऑल टू स्टे फॉर डिनर। और अजमल ने क्या किया? उनके सबके जो बंधन थे लूज कर दिए। इट मीन्स जो उसको पकड़ कर लाया था, चैन सारी हटा दी। एंड आस्क्ड देम ऑल टू स्टे फॉर डिनर, और उन सबसे कहा कि तुम लोग डिनर करके ही जाना। एंड वाज आस्क्ड देम टू स्टे फॉर डिनर। ही वाज एन ऑफर द टाइगर्स कुडंट रिफ्यूज, और इट वाज द ऑफर गिवन बाय द टाइगर्स कुडंट रिफ्यूज। इट मीन्स जो ऑफर उन्हें दिया गया अजमल के द्वारा उसको टाइगर्स ने रिफ्यूज नहीं किया। एंड आफ्टर द लैम्प
chops and the roast. यानी लैम्ब को चॉप किया गया और रोस्ट किया गया. When Ajmal proposed, they signed a long-term friendship treaty. और जब अजमल ने ये प्रपोज किया तो फिर उन्होंने एक साइन किए किस पर? लॉन्ग टर्म ट्रीटी पर. ट्रीटी यानी संधि पर, यानी एक फ्रेंडशिप टर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. ऑल द टाइगर्स रोड, सारे टाइगर्स रोड किए. वी कुडंट एग्री विद यू मोर, हम आपसे बहुत ज्यादा समय तक एग्री नहीं रह सकते. एंड स्वॉर दे वुड बी गुड फ्रेंड्स ऑल देयर लाइव्स एज दे पुट डाउन द फॉक्स एंड द नाइफ्स. एंड स्वॉर दे वुड बी गुड फ्रेंड्स, उन्होंने कहा वे अच्छे फ्रेंड्स बने रहेंगे ऑल देयर लाइफ्स, अपने पूरे जीवन में. एंड एज दे पुट डाउन द फॉक्स, और जब जैसे ही उन्होंने फॉक्स और नाइफ्स रखे. फॉक्स और नाइफ्स किसके लिए यूज कर रहे थे वो लोग? ईटिंग के लिए. और उसके बाद इसको रखने के बाद उन्होंने ये स्वॉर की. नाउ अजमल साइंड ए पैक्ट, और एक अजमल ने एक साइन किया, एक पैक्ट साइन किया. क्या पैक्ट था वो? विद द टाइगर पीपल एंड द सेंड देम बैक. किसके मतलब सिग्नेचर करवाए एक ट्रीटी पर, और उन्होंने विद द टाइगर पीपल, किसके साथ? टाइगर पीपल के साथ. एंड सेंड देम बैक, और उनको वापस भेज दिया. अब आगे लैडन विद गिफ्ट्स ऑफ सीप, यानी कि उसके पास क्या था? गिफ्ट्स ऑफ सीप. सीप के लिए गिफ्ट्स थे बहुत सारे. लेदर जैकेट्स एंड वॉल्स ऑफ वूल, और ऊन की वॉल्स थी वूल की, एंड लेदर जैकेट्स, और लेदर की जैकेट्स थी. अजमल wasn't a fool, अजमल कोई फूल नहीं था. Like all good shepherds he knew, अच्छे shepherds की तरह वो जानता था that even tigers have got to eat sometime, कि टाइगर्स जो है उन्होंने जो कुछ खाया है कुछ समय के लिए. A good shepherd sees to it they do, एक अच्छा shepherd जानता था या देख रहा था to it they do, ऐसा वो करेंगे. He is free to play a flute all day, वह फ्री था किससे? किसके लिए? फ्लूट को बजाने के लिए, ऑल डे एंजॉय करने के लिए. एज वेल फैट टाइगर्स एंड फैट sheep ड्रिंक फ्रॉम द सेम पॉन्ड, और वह ये चाहता था कि टाइगर्स और शीप दोनों एक ही पॉन्ड पर पानी पिए. विद अ फुल स्टोमक फॉर अ कॉमन बॉन्ड, और इस तरह से अगर किसी का पेट भरा हुआ है देन ही कैन डू कॉमन बॉन्ड, तो वो एक कॉमन बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकता है. सो इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, to give treat somebody and to eat the food for them is very essential. If you are given a feast, if you are given a feast to anybody, then they will be owe to you, and they will be support to you, and after it you becomes friend, and you can take enjoyment forever. ठीक है. तो now यही अजमल का प्लान था, और उसने क्या किया? अजमल ने टाइगर पीपल को फीस्ट दिया, दावत दिया एक, और उसके बाद उनसे साइन करवा लिए एक ट्रीटी पर, एक संधि पर साइन करवा लिए, और वो आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बन गए. और टाइगर और शीप दोनों एक ही पॉन्ड में पानी पीने लगे. इट मीन्स दोनों में फ्रेंडशिप हो गई. विद अ फुल स्टोमक फॉर ए कॉमन बॉन्ड, और इस तरह से उनके फुल स्टोमक से एक कॉमन बॉन्ड उन्होंने पूरा कर लिया. क्लियर? बिकॉज ऑफ अजमल वॉज अ वाइज पर्सन, और उसने इसीलिए एक फीस्ट दी. उन लोगों से लड़ाई नहीं की टाइगर्स पीपल से, क्योंकि किसी से फाइट करने की कंपैरिजन में अगर उसको फीस्ट पर बुलाते हैं, उसको दावत देते हैं, बैंकेट रखते हैं उसके लिए, तो इट बिकम्स इजी टू बी फ्रेंडशिप फॉर ईच अदर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ the poem has literal level and a figurative level.
Why has the poet chosen tigers and sheep to convey this message? Tomorrow we will discuss question answer. And now the poem is completed. Thank you. Have a nice day, all of you.